ठीक है। So very good evening, all the participants. Today we'll start with this voluntary liquidation, right? So I hope my screen is visible. Is it visible? Yes, sir. That is visible. So this voluntary liquidation 3. Now the name itself implies that it is voluntary, right? So and it is liquidation. So directly liquidation can be started without resorting to CIRP in this case, right? There is only one section, section 59 for this. And what section 59 says? This is section 59. Section 59 says that a corporate person who intends to liquidate itself voluntarily. Just a minute. It says a corporate person who intends to liquidate itself voluntarily and has not committed any default, right? So there should not be any default. But it doesn't mean that there should not be any default any time in the past. That means as on the date of application, whenever he decides, there should not be any default. Suppose there was a default 5 years ago and that was made good. So that company also can go in for voluntary liquidation. But whenever they decide to liquidate themselves voluntarily, at that point of time, there should not be any default, right? That means at the time of initiation of this process, may initiate voluntary liquidation proceedings under the provisions of this chapter, right? सर अगर डिफॉल्ट होगा तो उसमें चला जाएगा जो सीआईएम वाला लिक्विडेशन प्रोसेस है। तीन है डिफॉल्ट मेरे। होगा तो सेक्शन 10 की एप्लीकेशन लगाएगी ना। हाँ, सेक्शन 10 की एप्लीकेशन में चला जाएगा। हाँ, the voluntary liquidation of a corporate person under subsection 1 shall meet such conditions and procedural requirements as may be specified by the board. So there are regulations for this, regulation number 3 to 41. And without prejudice to subsection 2, voluntary liquidation proceedings of a corporate person registered as a company shall meet the following conditions. अब यहां पर क्या बोला? Registered as a company. तो LLP का क्या होगा? LLP के बारे में regulations में दिया हुआ है, ठीक है, 59(2). यहां सेक्शन में कुछ LLP के बारे में नहीं दिया, LLP के बारे में रेगुलेशंस में दिया। तो इफ इट इज रजिस्टर्ड एज ए कंपनी क्या होगा? डिक्लेरेशन फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। मेजॉरिटी है, देखिए, स्पेशल मेजॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी मतलब सिंपल 51%. यस। तो डिक्लेरेशन फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वेरीफाइड बाय एफिडेविट, एक एफिडेविट देंगे स्टेटिंग दैट they have made a full inquiry into the affairs of the company and they have formed an opinion that either the company has no debt or that it will be able to pay its debts in full from the proceeds of assets to be sold in voluntary liquidation. ठीक है, the company is not being liquidated to defraud any person. The declaration under subclause A shall be accompanied with the following document. Declaration के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं? Audited financial statements, ठीक है, Previous 2 years. हाँ, audited financial statements and record of business operations of the company. देखिए, audited financial statements अलग है और record of business operations अलग है। तो record of business operations में जो भी आपके पास रिकॉर्ड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, वो सब लगा है, ठीक है, for the previous 2 years or for the period since its incorporation, whichever is later, ठीक है। A report of the valuation of the assets of the company, if any, prepared by a valuer, ठीक है। और ये if any क्या है? If any is to be read with assets of the company. ऐसा भी केस हो सकता है कि कंपनी के पास कोई एसेट्स ही नहीं है ना? अगर एसेट्स ही नहीं है तो फिर वैल्यूएशन की जरूरत नहीं है, या दी ओनली एसेट इज कैश एंड बैंक बैलेंस, तो उसमें तो वैल्यूएशन करवाना नहीं है आपको, ठीक है। विद इन 4 weeks ऑफ ए डिक्लेरेशन अंडर सब क्लॉज ए देयर शैल बी, और क्या लिखा है? इफ एनी प्रिपेयर्ड बाय ए रजिस्टर्ड वैल्यू, ए लिखा है तो ए का मतलब एक हो जाएगा, वन रजिस्टर्ड, ठीक है। विद इन 4 weeks ऑफ ए डिक्लेरेशन अंडर सब क्लॉज ए देयर शैल बी, आपने सबसे पहले क्या किया? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन से पहले आपने क्या देखना है?
डिक्लेरेशन से पहले क्या देखना है आपने, ये देखना है कि कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, हम्म ठीक है। डिफॉल्ट के बाद डिफॉल्ट आपने चेक कर लिया, डिक्लेरेशन दे दिया। डिक्लेरेशन में क्या लिखा, पहली बात तो लिखी या तो कंपनी के पास कोई डेट ही नहीं है, अगर कोई डेट है तो हम उसको पेमेंट कर देंगे, और हम्म हमारा पर्पज कोई फ्रॉड करना नहीं है। इसके साथ में ये डॉक्यूमेंट्स हमने लगा देने, ठीक है। उसके साथ में एक स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। स्पेशल रेजोल्यूशन हमें मालूम है 3/4 मेजोरिटी, ठीक है, रिक्वायरिंग द कंपनी टू बी लिक्विडेटेड वॉलंटरीली एंड अपॉइंटिंग एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू एक्ट एज द लिक्विडेटर। तो यहीं पर ये स्पेशल रेजोल्यूशन में ही अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। देखो यहां वर्ड क्या लिखा, अपॉइंटिंग, मतलब ये खुद ही अपॉइंट कर रहे हैं। यहां अदरवाइज क्या लिखते हैं, वहां लिखते हैं प्रपोज, है ना। हम्म यहाँ प्रपोज नहीं कर रहे हैं, यहाँ अपॉइंटमेंट ही कर रहे हैं डायरेक्ट, मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का रोल नहीं है स्टेज पर, ठीक है। और a resolution of the members of the company in a general meeting requiring the company to be liquidated voluntarily as a result of expiry of the period of its duration, if any, fixed by its articles, or on the occurrence of any event in respect of which the articles provide that the company shall be dissolved as the case may be, and appointing an insolvency professional to act as the liquidator। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें क्या है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ही लिखा हुआ है, आपने कंपनी बनाई एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए या स्पेसिफिक पर्पस के लिए, आप कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप उसके लिए सेपरेट कंपनी बना लेते हैं, ताकि क्या हो, अगर कोई लिटिगेशन वगैरह भी हो तो वो उसी कंपनी तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहे, ठीक है। टेंडरिंग पर्पस से भी कई बार स्पेशल पर्पस व्हीकल बना लेते हैं, और उसमें लिख देते हैं भाई जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो हम जो है कंपनी को डिसॉल्व कर देंगे। अगर ऐसा कोई केस है तो उस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन की बजाय जनरल रेजोल्यूशन चाहिए। ए रेजोल्यूशन मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है। नॉर्मली स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, लेकिन अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर ये कि कोई इवेंट दे रखा है आपने, जैसे एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, जिसमें आर्टिकल्स में लिखा है कि भाई कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी, तो उस केस में आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज सफिशिएंट, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द कंपनी ओज एनी डेट टू एनी पर्सन, अगर मान लीजिए डेट है तो डेट में क्या करना है, और डेट कितना होना चाहिए, क्रेडिटर्स रिप्रेजेंटिंग 2/3 इन वैल्यू ऑफ द डेट ऑफ द कंपनी shall approve the resolution passed under subclause C within 7 days of such resolution। अब आप ये ध्यान में रखिए कि यहां कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कर रहे हैं जो क्रेडिटर्स हैं, जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ, स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, उसको ये अप्रूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अब 3 चीजें हो गई, पहला डिक्लेरेशन, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और थर्ड अगर कोई डेट है तो क्रेडिटर्स रिप्रेजेंटिंग क्रेडिटर्स अप्रूवल, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग 2/3 इन वैल्यू ऑफ द डेट ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये प्रोसेस करना है, ये सारी चीजें हो गई। अब आपको किसको बताना है, क्या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बताना है, द आंसर इज नो। नो वो तो है ही नहीं पिक्चर में। हाँ, यहां पर क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड द बोर्ड, बोर्ड मतलब आईबीबीआई, about the resolution under subsection 3 to liquidate the company within 7 days of such a resolution or the subsequent approval by the creditors as the case may be, ठीक है। तो अगर कोई क्रेडिटर है ही नहीं तो क्या होगा, आपने स्पेशल रेजोल्यूशन या रेजोल्यूशन पास कर दिया और उसी के 7 डेज के अंदर बता दिया, और अगर कोई क्रेडिटर है तो जो अप्रूवल हो गया उसके 7 दिन के अंदर बता दिया। अब आपका यहां सवाल उठ सकता है कि भाई अगर क्रेडिटर अप्रूव नहीं करते तो क्या होगा, तो ये वॉलंटरी लिक्विडेशन स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द क्रेडिटर्स अंडर सबसेक्शन 3 the voluntary liquidation proceedings in respect of a company shall be deemed to have commenced। देखो यहां पर डीमिंग फिक्शन है, मतलब shall be deemed to have commenced, मतलब कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर नहीं है। जैसे ऑर्डिनरी लिक्विडेशन में क्या होता है, एक लिक्विडेशन ऑर्डर पास होता है ना। यहां पर कोई लिक्विडेशन ऑर्डर पास नहीं हो रहा, एक डीमिंग फिक्शन है। और वो डीमिंग फिक्शन क्या है कि वॉलंटरी कमेंसमेंट डेट क्या है आपकी, वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट वो है डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन, ठीक है, अंडर सब क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 3, ठीक है। ध्यान में देखने वाली बात क्या है, डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन, मतलब डेट ऑफ अप्रूवल बाय क्रेडिटर नहीं है, समझ रहे हो। जो वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट है
वो होगी आपकी डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है। बट सर अभी आपने कहा ना कि सीओसी का अप्रूवल मैंडेटरी है। नहीं, अगर क्रेडिटर्स हैं तो क्रेडिटर्स रिप्रेजेंटिंग 2/3 इन वैल्यू वो भी अप्रूव करेंगे रेजोल्यूशन को। वो रेजोल्यूशन को ही नहीं पास कर रहे, वो अप्रूव कर रहे हैं। फिर मैंने ये भी बताया कि अगर अप्रूव ही नहीं करेंगे तो वॉलंटरी लिक्विडेशन स्टार्ट ही नहीं होगा, हाँ जी। ठीक है ना। और अगर रिजर्व। अप्रूव कर दिया इन्होंने हम्म। रिप्रेजेंटिंग 2/3, तो जो डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन है वो होगी आपकी वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंसमेंट। और 7 दिन के अंदर कब बताना है? 7 दिन के अंदर दो अलग अलग सिचुएशंस होगी। अगर तो क्रेडिटर्स है तो जब क्रेडिटर ने अप्रूव किया उसके 7 दिन के अंदर। अगर कोई क्रेडिटर नहीं है तो जो डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन है उसके 7 दिन के अंदर। क्लियर है बात? है मैडम? हाँ जी सर, बस हाँ हाँ जी, थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन है, बस समझ जाऊंगी। नहीं, बताइए। देखो, वॉलंटरी लिक्विडेशन डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया भाई कंपनी को वॉलंटरी लिक्विडेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे? सबसे पहले एक डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन देंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन के बाद में देखेंगे कि भैया आर्टिकल्स में कुछ लिखा तो नहीं है कंपनी के बारे में, ठीक है। अगर लिखा है कि भैया ये अगर इवेंट हो जाएगा तो हम डिसॉल्व कर देंगे, या आर्टिकल्स में कोई पीरियड फिक्स्ड है, तो फिर उस केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, अदरवाइज स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। और ये जो रेजोल्यूशन पास होने के 7 दिन के अंदर ये बता देंगे एडजुडिकेटिंग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और बोर्ड को, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कंपनी में को क्रेडिटर्स भी हैं, तो क्रेडिटर्स का अप्रूवल भी जरूरी है, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग 2/3 इन वैल्यू। और क्रेडिटर का जब अप्रूवल होगा उसके 7 दिन के अंदर बता देंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और बोर्ड को, ठीक है। हाँ जी। लेकिन जो वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट है वो होगी डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन, ठीक है। क्लियर है अब? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, अब क्लियर है। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शंस 35 to 53। अब देखो यहां पर क्या लिखा, 35 to 53, ठीक है, 33 नहीं लिखा। अगर आप देखो लिक्विडेशन स्टार्ट होता है सेक्शन 33 से, लेकिन यहां लिखा 35 to 53। इसका मतलब 33 और 34 एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि 33 में मॉरेटोरियम की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ 35 से 53 तक अप्लाई होंगे टू वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स फॉर कॉर्पोरेट पर्संस विद सच मॉडिफिकेशंस एज मे बी नेसेसरी, ठीक है। Where the affairs of the corporate person have been completely wound up and its assets completely liquidated, the liquidator shall make an application to the adjudicating authority for the dissolution of such person, ठीक है। And the adjudicating authority shall on an application filed by the liquidator under subsection 7 pass an order that the corporate debtor shall be dissolved from the date of that order and the corporate debtor shall be dissolved accordingly, ठीक है। और फिर उसकी कॉपी देनी है टू द अथॉरिटी विद विच द कॉर्पोरेट पर्सन इज रजिस्टर्ड। कितने दिन के अंदर? विद इन 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, ठीक है। तो ये प्रोसेस है आपका वॉलंटरी लिक्विडेशन का। अब हम इसके रेगुलेशंस भी पढ़ लेते हैं। ये वॉलंटरी लिक्विडेशन रेगुलेशंस, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस भी हम एक बार देख लेते हैं। एक डेफिनेशन है कंट्रीब्यूटरी। कंट्रीब्यूटरी क्या है? एक वर्ड आता है कंट्रीब्यूटरी और दूसरा वर्ड आता है स्टेक होल्डर्स, ठीक है। कंट्रीब्यूटरी मतलब जिसने कंट्रीब्यूट करना है, और स्टेक होल्डर जिसने लेना है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूटरी कौन है? जिन्होंने कंट्रीब्यूट करना है। तो कंट्रीब्यूटरी मीन्स ए मेंबर ऑफ ए कंपनी, पार्टनर ऑफ LLP and any other person liable to contribute towards the assets of the corporate person in the event of its liquidation। जैसा हमें मालूम है, जब हम when we subscribe to the shares of a company, मान लो हमने 100 रुपीज का शेयर खरीदा, है ना, 50 रुपए हमारे पेड अप है, तो कंपनी कभी भी बाकी के 50 रुपए मांग सकती है। तो टू दैट एक्सटेंट वी आर कंट्रीब्यूटरी because we are liable to contribute towards the assets of the corporate person in the event of its liquidation। और स्टेक होल्डर कौन है? स्टेक होल्डर वो है जो कि एंटाइटल्ड है टू द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ लिक्विडेशन एसेट्स अंडर सेक्शन 53, ठीक है। क्योंकि 33 to 55 वो कह रहा है कि यहां पर भी एप्लीकेबल है,
ये हमने पढ़ा ना, 35 to 53, तो 53 भी इसमें लगेगा। तो एक डेफिनेशन हो गई कंट्रीब्यूटरी, एक हो गई स्टेक होल्डर। एक है कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट। ये कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट क्या है? क्योंकि आपको चीजों को तो क्लोज करना ही है। ऐसा हो सकता है किसी आदमी ने पैसा क्लेम किया और बाद में वहां नहीं लेने आया, तो ऐसा इसके लिए फिर कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट खोल देते हैं, जो कि जिसको बोर्ड मेंटेन करता है, और फिर वहां से क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विडेशन पसंद फंड कब तक अकाउंट में फंड रहेगा? वो 15 साल तक रहता है, 15 साल बाद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाता है। ओके सर, 15 हाँ, साल, ओके। लिक्विडेशन वो पढ़ेंगे हम पूरा डिटेल में इसके बारे में। लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट मींस द डेट ऑन विच द प्रोसीडिंग्स फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंस एज पर सेक्शन 59(5) एंड रेगुलेशन 3 सबसेक्शन 3। ठीक है, तो लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट क्या है? ये डेट है ऑन विच द प्रोसीडिंग्स फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंस, और वो डेट है आपकी डेट ऑफ डेट ऑफ पासिंग ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। ठीक है, रजिस्ट्रार का मतलब वही है जो कंपनी ने किया, एलएलपी एक्ट में लिखा है। इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन। अब ये इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन क्या है? कुछ तो हमने सेक्शन में पढ़ लिया। अब यहां क्या कहता है? विदाउट प्रेजुडिस टू सेक्शन 59(2) लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स ऑफ ए कॉर्पोरेट पर्सन शैल मीट द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला, डिक्लेरेशन फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है, कंपनी के बारे में सेक्शन में लिख दिया और एलएलपी के बारे में लिख दिया यहां पर। ठीक है, डिक्लेरेशन किसके होगा? मेजॉरिटी ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अगर हम प्री पैक में देखें तो प्री पैक में क्या लिखा? मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। ये ध्यान में रखना है। यहां पर क्या है? मेजॉरिटी ऑफ द डेजिग्नेटेड इफ ए पर्सन इज ए एलएलपी और इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द गवर्निंग बॉडी इन केस ऑफ अदर कॉर्पोरेट पर्संस। ठीक, तो कॉर्पोरेट पर्सन 3 तरह के हो सकते हैं। कंपनी के बारे में सेक्शन 59 में लिख दिया, और एलएलपी यहां लिख दिया, और अगर कोई अदर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द गवर्निंग बॉडी इन केस ऑफ अदर कॉर्पोरेट पर्सन, तो उनका डिक्लेरेशन हो जाएगा मेजॉरिटी। ठीक है, एज द केस वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट stating that they have made a full inquiry into the affairs of the corporate person and they have formed an opinion that either the corporate person has no debt or that will be able to pay its debts in full from the proceeds of assets to be sold in the liquidation. ठीक है, the corporate person is not being liquidated to defraud any person. ठीक है, and the corporate person has made sufficient provision to meet the obligations arising on account of pending matters mentioned in सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज P। ठीक है, मतलब अगर कोई पेंडिंग मैटर्स है, मान लीजिए कोई लीगल सूट फाइल्ड है और अभी उसका डिसीजन नहीं हुआ, मान लो कोई कोर्ट पे केस चल रहा है। ठीक है, अभी इन्होंने वॉलंटरी लिक्विडेशन स्टार्ट कर दिया, अब वॉलंटरी लिक्विडेशन तो खत्म करना है ना इनको, तो अगर मान लो तब तक कोर्ट का फैसला नहीं आया तो क्या होगा? तो उसके लिए प्रोविजन करते हैं। ठीक है, प्रोविजन क्या करते हैं? बेसिकली वो डायरेक्टर्स कह देते हैं भाई हम पेमेंट करेंगे उसको, अगर कोई ऑब्लिगेशन आएगा तो। ठीक है, द डिक्लेरेशन अंडर सब क्लॉज, इसको आप ऐसे समझो कोई दुकान आदमी बंद कर रहा है, ठीक है ना, तो दुकान बंद कर रहा है, किसी की देनदारी होगी तो वो जो पार्टनर होते हैं वो कह देते हैं भाई हम दे देंगे उसको, वही चीज। द डिक्लेरेशन अंडर सब क्लॉज है शैल बी अकॉम्पनीड विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, नेमली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है? एक तो फाइनेंस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स and record of business operations of the corporate person for the previous 2 years or for the period since its incorporation whichever is later। मतलब अगर 2 साल से कम हुए कंपनी को बने तो 1 साल का ही लगा देंगे। ठीक है, a report of the valuation of the assets of the corporate person if any prepared by a registered valuer। ठीक है, and disclosure about pending proceedings or assessments before statutory authorities and pending litigations in respect of कॉर्पोरेट पर्सन। ये भी है, अगर कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है या कोई असेसमेंट पेंडिंग है और कोई पेंडिंग लिटिगेशन है तो उसके बारे में भी डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, और विद इन 4 वीक्स ऑफ ए डिक्लेरेशन अंडर सब क्लॉज ए देयर शैल बी। ठीक है, तो 4 हफ्ते के अंदर आपको क्या करना है? एक रेजोल्यूशन पास करनी है बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स और कंट्रीब्यूटरीज एज द केस में भी of the corporate person requiring the corporate person to be liquidated and appointing an insolvency professional to act as the liquidator।
या फिर एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगी। कब होगी? जब पीरियड फिक्स्ड है आपका, ठीक है, या फिर यह है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि भाई आपका ये जो है कंपनी ये कॉर्पोरेट पर्सन डिसॉल्व हो जाएगा ऑन द एक्सपायरी ऑफ ए फिक्स्ड टर्म। ठीक है, तो ये चीज, प्रोवाइडेड दैट द कॉर्पोरेट पर्सन ओज एनी डेट टू एनी पर्सन, क्रेडिटर्स रिप्रेजेंटिंग 2/3 इन वैल्यू शैल अप्रूव द स्पेशल रेजोल्यूशन। तो उन्होंने भी अप्रूव करना है जो भी आपकी रेजोल्यूशन है विद इन 7 days ऑफ सच रेजोल्यूशन। ठीक है, the corporate person shall notify the registrar and the board about the resolution under sub-regulation 1 to liquidate the corporate person within 7 days or the subsequent approval by the creditors as the case may be. Subject to approval of the creditors, the liquidation proceedings in respect of a corporate person shall be deemed to have commenced from the date of passing of the resolution. ठीक है, and for the purposes of sub-regulations 1 to 3, corporate person means a corporate person other than a company. यहां पर कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई कॉर्पोरेट पर्सन का क्या मतलब है। कॉर्पोरेट पर्सन तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना, उसमें तो कंपनी भी है, एलएलपी भी है और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट भी है। बट यहां पर क्या कह रहा है? अदर देन ए कंपनी, लेकिन सिर्फ इन्हीं सब रेगुलेशंस के लिए। ठीक है, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सब रेगुलेशंस 1 to 3, कॉर्पोरेट पर्सन मीन्स ए कॉर्पोरेट पर्सन अदर देन ए कंपनी, क्योंकि कंपनी के बारे में आपको सेक्शन 59 में बता दिया। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है बिल्कुल? Yes, sir, sir. Yes, sir. The declaration under sub-regulation 1A or under section 59(3)(a) shall list each debt of the corporate person. पूरे डेट की लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, एज ऑन दैट डेट, जो भी डेट ऑफ डिक्लेरेशन है, and state that the corporate person will be able to pay all its debts in full from the proceeds of assets to be sold in the liquidation. ठीक है, the declaration under sub-regulation 1A or under section 59(3)(a) shall provide that the corporate person has made provision for preservation of its records after its dissolution. ठीक है, तो डिसोल्यूशन के बाद भी जो रिकॉर्ड्स है वो कहाँ प्रिजर्व करेंगे, उसके बारे में भी डिक्लेरेशन में दिया जाए कि भाई हमने प्रोविजन कर दिया है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ इट्स रिकॉर्ड्स, क्योंकि बाद में भी कोर्ट केसेस हो सकते हैं, है ना। तो उस केस में क्या होगा कि ये डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई वी हैव मेड प्रोविजन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ इट्स रिकॉर्ड्स। ठीक है, नाउ इफेक्ट ऑफ लिक्विडेशन, द कॉर्पोरेट पर्सन शैल फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट cease to carry on its business except as far as required for the beneficial winding up of its business, and notwithstanding the provisions of subsection 1, the corporate person shall continue to exist until it is dissolved under section 59(a). ठीक, तो जब तक it shall continue to exist, कंपनी की एग्जिस्टेंस तो रहती है ना, जब तक वो डिसॉल्व नहीं हो जाती। ठीक, अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर। अब यहां पर देखिए अपॉइंटमेंट कहां पर हो रही है, वो जो स्पेशल रेजोल्यूशन हो रही है या रेजोल्यूशन, उसी में अपॉइंटमेंट भी हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए अपॉइंटमेंट इज बीइंग डन बाय हूम, अपॉइंटमेंट इज डन बाय द कॉर्पोरेट पर्सन। ठीक है, सब्जेक्ट टू रेगुलेशन 6, द कॉर्पोरेट पर्सन shall appoint an insolvency professional, and whether we are required to intimate the adjudicating authority, the answer is no. ठीक, subject to regulation 6, the corporate person shall appoint an insolvency professional as liquidator, and wherever required may replace him by appointing another insolvency professional as liquidator. अगर रिप्लेसमेंट करनी है तो भी कौन करेगा? कॉर्पोरेट पर्सन। और कॉर्पोरेट पर्सन कैसे? मतलब थ्रू रेजोल्यूशन, नेचुरली बाय रेजोल्यूशन पास्ड अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 59 और क्लॉज सी ऑफ सब रेगुलेशन 1 ऑफ रेगुलेशन 3 तक। मतलब वही रेजोल्यूशन होगी, चाहे स्पेशल रेजोल्यूशन हो या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट such a resolution shall contain the terms and conditions of appointment of the liquidator, including the remuneration payable to him. The insolvency professional shall, within 7 days of his appointment as liquidator, intimate the board about such appointment. ठीक है, तो आईपी किसको बताएगा? बोर्ड को। ठीक है, कॉर्पोरेट पर्सन ने किसको बता दिया? कॉर्पोरेट पर्सन ने बता दिया किस किसको?
ये रजिस्ट्रार और बोर्ड को, ठीक है। और आईपी ने किसको बता दिया? खाली बोर्ड को। आईपी, ठीक। नाउ एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज लिक्विडेटर, ये एलिजिबिलिटी वही है जो हमारा आरपी, लिक्विडेटर, सबके बारे में वही सब सेम चीजें हैं। सिर्फ इसमें क्या फर्क है, यहाँ पर वो 10% है of a legal or consulting firm that has or had any transaction with the corporate person contributing 10% or more of the gross turnover of such firm, ठीक है। तो CIRP छोड़ करके बाकी सभी जगह 10% ही है मेरे हिसाब से, है ना, at any time in the last 3 years. An insolvency professional shall not be eligible to be appointed as a liquidator if he or the insolvency professional entity of which he is a partner or director is under a restraint order of the board. मतलब बोर्ड का, मतलब IBBI का कोई restraint order है that you are hereby restrained from practicing as an insolvency professional वगैरह वगैरह, तो उस केस में वो he will not be eligible to be appointed, ठीक है। A liquidator shall disclose the existence of any pecuniary or personal relationship with the concerned corporate person or any of its stakeholders as soon as he becomes aware of it to the board and the registrar, ठीक है। ये जो डिस्क्लोजर के बारे में ये कोड ऑफ कंडक्ट में दिया गया, ठीक है। An insolvency professional shall not continue as a liquidator if the insolvency professional entity of which he is a director or partner or any other partner or director of such insolvency professional entity represents any other stakeholder in the same liquidation, ठीक है। और जो remuneration payable to the liquidator, it shall form part of the liquidation cost. Now powers and functions of the liquidator. रिपोर्टिंग में क्या क्या इसको रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है? सबसे पहले इसको एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, ठीक है। फिर स्टेटस रिपोर्ट, मिनट्स ऑफ कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स एंड फाइनल रिपोर्ट इन द मैनर स्पेसिफाइड इन दिस रेगुलेशन। तो ये रिपोर्ट्स इसको तैयार करनी, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट, minutes of consultation with stakeholders and final. Subject to other provisions of these regulations, the liquidator shall make the reports and minutes referred to sub-regulation 1 available to a stakeholder, either electronic or physical form, on receipt of an application in writing. Cost of making such reports available to it. कोई भी स्टेक होल्डर जो है रिपोर्ट मांग सकता है, कौन सी? ये ऊपर वाली रिपोर्ट्स। उसके लिए उसको क्या करना है? He has to apply in writing. कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑफ सच रिपोर्ट्स, कोई फोटोकॉपी वगैरह चार्जेस, और फिर अंडरटेकिंग देगा स्टेक होल्डर। क्या सबमिट किसको करेगा रिपोर्ट सर? ये है सेल्फ प्रिपेयर एंड सबमिट, तो सबमिट रिपोर्ट किसको करेगा ये? अच्छा ये वाली, ये तो सब आएगा ना, आगे आएगा। अच्छा ठीक है सर, ओके आगे आएगा, ओके कह सर, रहा है ना स्पेसिफाइड अंडर दीज रेगुलेशंस, तो आगे आगे स्पेसिफाई करेगा किसको उसको देनी है। ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ, उसका एक चार्ट भी बना रखा हमने, कौन सी रिपोर्ट किसको देनी है। ठीक है सर, ओके। हाँ, अभी क्या है, वो कहता है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। स्टेक होल्डर कौन है? जिसको 53 में प्रसाद मिलना है, ठीक है। तो अगर स्टेक होल्डर को कोई इन्फॉर्मेशन, इनमें से कोई रिपोर्ट चाहिए, तो वो अप्लाई करेगा इन राइटिंग, कॉस्ट देगा और फिर अंडरटेकिंग देगा, देन इट शैल मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सच रिपोर्ट्स एंड शैल नॉट यूज दीज टू कॉज एन अनड्यू गेन और अनड्यू लॉस टू इटसेल्फ और एनी अदर पर्सन, ठीक है। अब पहली रिपोर्ट पढ़ते हैं, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट इसने देनी किसको? कॉर्पोरेट पर्सन को, ठीक है, विद इन 45 डेज। क्योंकि देखो इसमें कॉर्पोरेट पर्सन ही है भाई, किसी के दूसरे का दे रहा ही नहीं है, या देगा तो अपने आप दे सकता है, तो किसी दूसरे का मतलब ही नहीं। तो अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? कॉर्पोरेट पर्सन। रिप्लेसमेंट कौन कर रहा है? कॉर्पोरेट पर्सन। कॉर्पोरेट पर्सन, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट किसको देनी है? कॉर्पोरेट पर्सन। कॉर्पोरेट पर्सन को। सेल के बारे में किससे पूछ रहा है? कॉर्पोरेट पर्सन से। सारी चीजें ज्यादातर कॉर्पोरेट पर्सन ही करता है, ठीक है। एक्सटेंशन के लिए भी कॉर्पोरेट पर्सन, वो भी एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, सब पढ़ेंगे हम। The liquidator shall submit a preliminary report to the corporate person within 45 days from the liquidation commencement date. सर एक बेग बड़ा बेग सा सवाल है, मैं एक शुरू का 5 मिनट मुझसे मिस हो गया था, आई गॉट अ कॉल। आप पूछिए कोई बात नहीं सर जैसे यहाँ पे कॉर्पोरेट पर्सन, हम यहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर की बात नहीं कर रहे, टर्म कॉर्पोरेट पर्सन यूज कर रहे हैं, एंड ही दैट कॉर्पोरेट पर्सन इज गोइंग इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन। तो क्या देखिए ऐसा ना, एक वर्ड हमें दोनों डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 3 में। कॉर्पोरेट पर्सन कौन है? कॉर्पोरेट पर्सन इज ए वाइडर टर्म। और कॉर्पोरेट डेटर कौन है? जिसने डेट ले रखा है। एग्रीड। तो इसलिए यहाँ पर कॉर्पोरेट डेटर यूज नहीं किया, क्योंकि डेट तो ले नहीं रखा है इसने।
हाँ, इसीलिए यहाँ पर कॉर्पोरेट पर्सन यूज किया गया, जबकि जो पार्ट अच्छा, टू है, मतलब मेरा पार्ट टू में आंसर कॉर्पोरेट डेटर यूज किया। हाँ के पास कोई डेट नहीं है, डेट फ्री है तो कर सकता है, क्योंकि मेरा हाँ, कंसर्न अगर इनकेस ही इट हैज सम क्रेडिटर, तो क्रेडिटर में ऑब्जेक्ट टू दिस लिक्विडेशन। लिखा है ना, नहीं उनको टू थर्ड अप्रूव करेंगे ना तो हो जाएगा ना। अच्छा, वो मुझसे मिस हो गया, ठीक है सर, डन, थैंक यू। टू थर्ड ठीक है सर, अप्रूव करेंगे ना तो हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, टू ओके। थर्ड तो अप्रूव करना ही है। अगर टू थर्ड भी नहीं अप्रूव करेंगे तो वॉलेटिल लिक्विडेशन होगा ही नहीं। ठीक है सर, ओके। हाँ, है ना। The liquidator shall submit a preliminary report to the corporate person within 45 days from the liquidation commencement. और उसमें क्या रहना है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन, estimates of assets and liabilities as on the liquidation commencement date based on the books of the corporate person। ठीक है। लेकिन अगर उसको बुक लगता है कि बुक्स रिलायबल नहीं है, तो फिर क्या होगा, he shall provide such estimates based on reliable records and data otherwise available to him। ठीक है। उसके बाद अब उसको क्या कुछ गड़बड़ लग रही है, इस स्टेज पर इंडिकेट कर देगा whether he intends to make any further inquiry into any matter relating to the promotion, formation or failure of the corporate person or the conduct of the business thereof। ठीक है। तो यहां पर इसकी जिम्मेदारी लगा दी लिक्विडेटर की। ठीक है। कि उसको प्रमोशन, फॉर्मेशन या फेलियर में या कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही, तो कोई और इंक्वायरी तो नहीं करनी। ठीक है। उसके बाद में प्रपोज्ड प्लान ऑफ एक्शन फॉर कैरिंग आउट द लिक्विडेशन इंक्लूडिंग द टाइमलाइन विद इन विच ही proposes to carry it out and the estimated liquidation cost। ये सारी बातें वो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाएगा और वो कॉर्पोरेट पर्सन को ये सब बातें बताएगा। ठीक है। उसके बाद रजिस्टर एंड बुक्स ऑफ अकाउंट। सर एक क्वेश्चन, हाँ पूछिए। यहाँ पे तो वो जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाएगा उसका सारा डाटा तो कॉर्पोरेट पर्सन ही देगा ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो सर वो डाटा भी वही देगा और वो रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट का जो भी एक सेट फॉर्मेट रहेगा वो बना के कॉर्पोरेट पर्सन को सबमिट कर देगा, राइट। हाँ लेकिन तो बुक्स तो देखेगा ना ये 45 हाँ डेज के अंदर, डेफिनेटली। क्योंकि 45 डेज से पहले क्या होगा, पब्लिक अनाउंसमेंट हो गई होगी, क्लेम्स हम्म। भी आ गए होंगे। हाँ अब मान जी। लीजिए बुक्स में कुछ लिखा हुआ है, क्लेम्स आ रहे हैं कुछ, इसका मतलब हाँ बुक जी वही। रिलायबल नहीं है। हाँ जी वही मैं बोल रही थी, तो ये खाली उनके डाटा नहीं, जैसे अगर उसको कोई डाउट होगा या कुछ होगा वेरी, हाँ हाँ तो वो उसको फिजिकली वेरीफाई या क्रॉस चेक करेगा, हाँ, वो राइट। क्या इसी में लिख देगा ना कि भाई मुझे फर्दर इंक्वायरी करनी है, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, या ओके तो अंडरस्टूड प्रमोशन में सर। गड़बड़ है या फॉर्मेशन में गड़बड़ है या फेलियर ऑफ ओके। द कॉर्पोरेट पर्सन में गड़बड़ है या जैसे वो उन्होंने बिजनेस चलाया उसमें है, तो वो ये यहाँ रिपोर्ट देगा। उसके बाद में एक आगे हम सेक्शन रेगुलेशन पढ़ेंगे, उसमें हाँ जी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी रिपोर्ट करेगा अगर उसको लगता है कि वॉलंटरी लिक्विडेशन डीफ्रॉड करने के लिए किया जा रहा है तो। ओके ओके अंडरस्टूड सर, हाँ। समझ गई सर, हम्म। थैंक यू। उसके बाद में रजिस्टर्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, where the books of account of the corporate person are incomplete on the liquidation commencement date, the liquidator shall have them completed and brought up to date with all convenient speed। ठीक है। मैं आपको वो सीधा ही दिखा देता हूँ पहले ही। वो रेगुलेशन है आपका शायद 41 में, क्या है, सर कौन सा रेगुलेशन? ये रेगुलेशन 40, वो जो फ्रॉड वाला था। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड हाँ ये मैं इंसॉल्वेंसी, पढ़ा ओके। देता हूँ आपको, ये क्या कहता है। रेगुलेशन 40 कहता है where the liquidator is of the opinion that the liquidation is being done to defraud a person, he shall make an application to the adjudicating authority to suspend the process of liquidation and pass any such orders as it deems fit। ठीक है। Where the liquidator is of the opinion that the corporate person will not be able to pay its debts in full। तो दो बातें, पहला कि फ्रॉडुलेंट पर्पस से इनिशिएट किया गया है, दूसरा उसको लगता है कि दे विल नॉट बी एबल टू पे द डेट्स इन फुल। ठीक सर है। माय क्वेश्चन, सर हाँ यहाँ पे एजुकेटिंग अथॉरिटी तो एनसीएलटी, राइट, नॉट हाँ आरओसी, नॉट आरओसी। हाँ वही है। इसमें क्योंकि इसमें तो एनसीएलटी को तो इन्वॉल्व ही नहीं किया एनसीएलटी, गया एनसीएलटी हाँ। था। लेकिन अगर आरओसी के लिए रजिस्ट्रार वर्ड यूज किया गया है। हाँ जी ओके, यहाँ एनसीएलटी रहेगा। हाँ जहां लिखा है ना रजिस्ट्रार एंड द बोर्ड, 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रार और बोर्ड को बताया, तो रजिस्ट्रार मतलब आरओसी को बताएगा और बोर्ड को बट सर बताएगा। वहां पे, बट सर यहाँ पे एजुकेटिंग अथॉरिटी का तो वही था ही नहीं ना। सारी बट ऐसा ना, अगर मान लो फ्रॉड करना है तो फिर तो बताना पड़ेगा ना, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का रोल लास्ट में ही आ रहा है।
ओके, अंडरस्टूड सर, लास्ट में इसका बहुत कम सिचुएशंस में रोल है। एक तो ये है कि भाई इसको लगता है कि फ्रॉडुलेंट पर्पस से इनिशिएट की गई, या इसको लगता है दे विल नॉट बी एबल टू पे देयर डेट्स इन फुल, या फिर डिसोल्यूशन की स्टेज। डिसोल्यूशन की एप्लीकेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को जाती है। ओके, ठीक है सर। हाँ, ठीक है। So where the liquidator is of the opinion that the corporate person will not be able to pay its debts in full from the proceeds of assets to be sold in the liquidation, he shall make an application to the adjudicating authority to suspend the process of liquidation and pass any such order as it is. ठीक है, चलिए अब हम जहां पर थे वहीं चलते हैं दोबारा से। ये तो इंडिकेशन आया था तो इसलिए मैंने कहा ये भी यही दिखा देता हूँ। नाउ रजिस्टर्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स कंप्लीट नहीं है तो कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया, लेकिन विद ऑल कन्वीनियंस स्पीड। और क्या क्या बुक्स मेंटेन करनी है, ये सारी बुक्स है, कैश बुक, लेजर, बैंक लेजर, फलाना। ठीक। और ये बुक्स कब तक मेंटेन करनी है, इसके लिए आपका प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स वाला रेगुलेशन। तो प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स वाला रेगुलेशन क्या बोलता है, वो भी साथ के साथ देख लेते हैं। ये है प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है। तो कौन सी 41 ना? हाँ 41। तो 41 क्या बोलता है, 41 बोलता है द लिक्विडेटर शेल प्रिजर्व कॉपीज ऑफ ऑल सच रिकॉर्ड्स विच आर रिक्वायर्ड टू गिव अ कंप्लीट अकाउंट ऑफ द वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस। तो ये सारे अपॉइंटमेंट लेटर, हैंडिंग ओवर वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें सबका रिकॉर्ड इसको रखना है। ठीक है, ये सारा दिया हुआ। और कब तक रखना है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी रिकॉर्ड्स रखनी है 8 साल के लिए, और फिजिकल कॉपी रखनी है 3 ईयर्स। ठीक है, ये हो गया। चलिए, एंगेजमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, रेगुलेशन 11 क्या बोलता है, a liquidator may engage professionals to assist him in the discharge of his duties, obligations and functions for a reasonable remuneration, and such remuneration shall form part of the liquidation। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। क्या है, इसका रिलेटिव नहीं होना चाहिए, लिक्विडेटर का रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन नहीं होना चाहिए, या फिर ऑडिटर नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो ऐसे आदमी को ये प्रोफेशनल अपॉइंट नहीं कर सकते। A professional engaged or proposed to be engaged shall disclose the existence of any pecuniary or personal relationship with any of the stakeholders or the corporate person as soon as he becomes aware of it to the liquidator। तो प्रोफेशनल किसको बताएगा, लिक्विडेटर को बताएगा। ठीक है, कि मेरा कोई रिलेशनशिप है पर्सनल या पेक्यूनरी। कंसल्टेशन, the stakeholders consulted under section 35(2) shall extend all assistance and cooperation to the liquidator to complete the liquidation of the corporate person. The liquidator shall maintain the particulars of any consultation with the stakeholders made under this regulation. Extortionate credit transaction, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। Extortionate credit transaction क्या होती हैं, जिसमें exorbitant payments करनी पड़ती है या कोई unreasonable terms। Public announcement, public announcement फॉर्म ए में होगी within 5 days from his appointment। और पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या करेंगे, ये क्लेम्स इनवाइट करेंगे। It shall call upon the stakeholders to submit their claims as on the liquidation commencement date. Provide the last date for submission of claims, which shall be 30 days from the liquidation commencement। ठीक है, तो 30 days होगी from the liquidation commencement। वही अनाउंसमेंट, वही इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर, on the website of the CD, on the website if any designated by the board। Proof of claim। ठीक है, a person who claims to be a stakeholder shall prove his claim for debts or dues to him, including interest if any, as on the liquidation commencement date। तो स्टेक होल्डर मतलब सारे, इवन शेयर होल्डर्स भी अपना क्लेम सबमिट करते हैं। ठीक है, यहां देखो वर्ड क्रेडिटर नहीं लिखा, क्या लिखा, स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर्स। और स्टेक होल्डर की डेफिनेशन दे रखी है। स्टेक होल्डर कौन है, जो जिसको 53 में पैसे मिलने। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के लिए फॉर्म बी है। ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए फॉर्म सी है, वर्कमैन एम्प्लॉयज के लिए फॉर्म डी है, और अगर न्यूमरस वर्कमैन है तो फॉर्म ई है, और अदर स्टेक होल्डर्स के लिए फॉर्म एफ। ठीक है, अब स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर भी अपना क्लेम सबमिट करेंगे, वो कहां से नजर आ रहा है आपको,
क्लेम्स बाय अदर स्टेक होल्डर्स। क्या वह कहता है? डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ऑफ हिज शेयर होल्डिंग। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि आपको शेयर होल्डर्स को भी क्लेम सबमिट करना है। ठीक है, प्रूविंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अगर कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो वो अपना डेट कैसे प्रूव करेगा? सिक्योरिटी इंटरेस्ट या तो रिकॉर्ड अवेलेबल होगा इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी, या आरओसी आरओसी में होगा, या सरसाई में चार्ज रजिस्टर हो। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो अगर कोई ऐसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, नोट इंस्ट्रूमेंट है, तो दैट शैल बी प्रोड्यूस्ड। सब्सटेंशिएशन ऑफ क्लेम्स, और लिक्विडेटर अगर चाहे तो और प्रूफ मांग सकता है। ठीक है, द लिक्विडेटर में कॉल फॉर सच अदर एविडेंस और क्लैरिफिकेशन एज ही डीम्स फिट फ्रॉम अ क्लेमेंट फॉर सब्सटेंशिएटिंग द होल और पार्ट ऑफ इट्स क्लेम। कॉस्ट ऑफ प्रूफ कौन बेयर करेगा? क्लेमेंट। ठीक है, कॉस्ट इनकर्ड बाय द लिक्विडेटर। अगर मान लो लिक्विडेटर को कोई कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है तो वो लिक्विडेशन कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। ठीक है, और अगर किसी ने क्लेम सबमिट किया वो फॉल्स है, तो लिक्विडेटर जो है वो कोशिश करेगा कि कॉस्ट उससे रिकवर कर ले, और फिर वो जो ऐसा क्लेमेंट है उसकी डिटेल्स बोर्ड को भी भेज दे। ठीक है, अगर कोई प्रिसाइज क्लेम नहीं है तो बेस्ट एस्टिमेट कर लेंगे। डेट इन फॉरेन करेंसी, ये होगा एट द ऑफिशियल एक्सचेंज रेट। ये सब में वही है, CIRP में भी, लिक्विडेशन में भी, सब जगह सेम है। अगर पीरियोडिकल पेमेंट्स है तो ओनली द अमाउंट्स ड्यू एंड अनपेड अप टू द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। मान लीजिए रेंट है, कोई बिल्डिंग 5 साल के लिए रेंट पे ले रखी है, तो 5 साल का रेंट थोड़ी प्रोवाइड करेंगे। इसमें कब तक का होगा? जो भी, जिस दिन लिक्विडेशन हाँ, बस लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट तक का होगा। अगर कोई फ्यूचर टाइम पर पेएबल है तो उस केस में एक फार्मूला दे रखा है इन्होंने कि ये इस फार्मूले के हिसाब से डिसाइड होगा, x/1 + r raised to the power n, मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकल जाए। ठीक है, मान लीजिए लोन ले रखा है 5 साल का, अब लोन तो अभी देना है, 5 साल तो देना नहीं, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल करके क्लेम बना लेते हैं। ठीक है, म्यूचुअल क्रेडिट्स एंड सेट ऑफ अलाउड है। वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स, वेरिफिकेशन के लिए 30 डेज। ठीक, एंड में आइदर एडमिट और रिजेक्ट द क्लेम इन होल और इन पार्ट। ठीक है, तो एडमिट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और फिर वो 42 में हमने लिक्विडेशन में पढ़ा था कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, विद इन 14 डेज। लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, the liquidator shall prepare a list of stakeholders on the basis of proofs of claim submitted and accepted under these regulations with the amount of claims admitted if applicable, extent to which the debts or dues are secured or unsecured if applicable, details of the stakeholders, and the proofs admitted or rejected in part and the proofs wholly rejected. ठीक, तो सारी चीजें ये क्या करेगा? ये पूरी लिस्ट बनाएगा। क्या एडमिटेड कितना है, डेट सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, डिटेल्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स, और प्रूफ्स एडमिटेड और रिजेक्टेड इन पार्ट्स एंड द प्रूफ्स होली रिजेक्टेड। और ये कब तक बनानी है? विद इन 45 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ क्लेम्स। प्रोवाइडेड दैट वेयर नो क्लेम फ्रॉम क्रेडिटर्स हैज बीन रिसीव्ड। अगर मान लीजिए क्रेडिटर का कोई क्लेम ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? The liquidator shall prepare the list of stakeholders within 15 days from the last date for receipt of claims. ठीक है, तो अगर क्लेम्स है तो विद इन 45 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लेम्स, और अगर कोई क्लेम आए नहीं तो विद इन 15 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ क्लेम्स। ठीक है, और लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ क्लेम्स क्या है? वो 30 डेज। ठीक, और ये जो लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स है एज मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम shall be available for inspection by the persons who submitted proofs of claim, available for inspection by members, partners, directors and guarantors of the corporate person, displayed on the website of the corporate person, displayed on the website if any designated by the board. ठीक है, तो लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स अवेलेबल रहेगी। मैनर ऑफ सेल क्या है? मैनर ऑफ सेल भी यहाँ पर कॉर्पोरेट पर्सन ही डिसाइड करेगा। द लिक्विडेटर में वैल्यू एंड सेल द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन in the manner and mode approved by the corporate person in compliance with the provisions, if any, in the applicable statutes. And assets include an assets, all assets, a set of assets or parcel of assets as the case may be in relation to sale of assets. ठीक है, रिकवरी ऑफ मनी ड्यू, ऐसा भी हो सकता है लिक्विडेटर ने कुछ अमाउंट रिकवर करना हो,
the liquidator shall endeavor to recover and realize all assets of and dues to the corporate person in a time-bound manner for maximization of value of the stakeholders. ठीक है. Then now proceeds of liquidation and distribution of proceeds. सबसे पहले तो ये क्या करेगा, एक अकाउंट खोलेगा, लिक्विडेशन अकाउंट, इनवॉलंटरी लिक्विडेशन. द लिक्विडेटर शैल ओपन ए बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन, जैसे XYZ लिमिटेड इनवॉलंटरी लिक्विडेशन. तो एक बैंक अकाउंट खोलेगा इन द नेम ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन और उसके आगे क्या वर्ड्स लिखे रहेंगे, इनवॉलंटरी लिक्विडेशन इन ए शेड्यूल्ड बैंक फॉर द रिसीट ऑफ ऑल मनीज ड्यू टू द कॉर्पोरेट पर्सन. ठीक है. The liquidator shall pay to the credit of the bank account opened under sub regulation 1 all monies including checks and demand drafts received by him as the liquidator of the corporate person, and the realization of each day shall be deposited in the bank account without any deduction not later than the next working day. ठीक है. तो सारे के सारे पैसे इसी अकाउंट में जमा कराने. अब प्रैक्टिकल क्या प्रॉब्लम आती है, बैंक में पैन कार्ड में तो नाम लिखा हुआ है XYZ लिमिटेड और यहां पर क्या खोल दिया, ये बैंक अकाउंट कह रहा है लिक्विडेशन. XYZ लिमिटेड इनवॉलंटरी लिक्विडेशन. तो बैंक वाले खोलते ही नहीं अकाउंट. बैंक वाले कहते हैं तुम्हारे तो पैन कार्ड पे ये लिखवा के लाओ पहले इनवॉलंटरी लिक्विडेशन, तब खोलेंगे. तो सर ये जब हम लोग का केस फाइल होता है एनसी एजुडिकेटिंग अथॉरिटी या हमारा तो वो पेपर देने से भी नहीं खोलेंगे कि इसके लिए पैन ही चाहिए होगा? वो तो कहते हैं पैन में, कुछ बैंक अकाउंट खोलने लगे हैं आजकल कुछ लोग, पर ये है कि वो फिर बेसिकली जो इंटीमेशन होती है वो सारी कॉपीज लेकर इस तरह से. हाँ जी वो उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि फॉर दिस हाँ. पर्पस वी वांट टू ओपन. ओके, अंडरस्टूड. तो जो विदाउट एनी रिडक्शन जितना भी अमाउंट है जो रियलाइज हुआ आपको जमा करवाना है, नॉट लेटर देन द नेक्स्ट वर्किंग डे. ठीक है. और ये जो मनी है इन द क्रेडिट ऑफ द बैंक अकाउंट शेल नॉट बी यूज्ड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 53(1). तो 53(1) जो वाटरफॉल मैकेनिज्म है उसके हिसाब से ही ये पैसा यूज किया जाएगा. ठीक है. ऑल पेमेंट्स आउट ऑफ द अकाउंट बाय द लिक्विडेटर अबव 5,000 रुपीज शैल बी मेड बाय चेक्स ड्रॉन और ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शंस अगेंस्ट द बैंक अकाउंट. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन कब करना है, द लिक्विडेटर शैल डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड्स फ्रॉम रियलाइजेशन विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ द अमाउंट टू द स्टेक होल्डर्स. क्योंकि धीरे धीरे रियलाइज होगा पैसा, है ना, जैसे जैसे एसेट्स बिकेंगे. तो आपको डिस्ट्रीब्यूट कब करना है, 30 days विद के इन 30 अंदर. days फ्रॉम द रिसीट ऑफ द अमाउंट. ठीक है. The liquidation cost shall be deducted before such distribution is made. The liquidator may, with the approval of the corporate person, distribute amongst the stakeholders an asset that cannot be readily or advantageously sold due to its peculiar nature or other special circumstances. तो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. मान लीजिए पुराने लैपटॉप है ना, पुरानी कार है, या कोई ऐसा इन्होंने प्रोजेक्ट बना रखा है, वहां पर फ्लैट्स हैं जो बिक नहीं रहे. ठीक है ना. तो उसको क्या करते हैं, उसको इन काइंड ही डिस्ट्रीब्यूट कर. मान लो एम्प्लॉयज को लैपटॉप दे रखे हैं कंपनी के नाम में, है तो एसेट्स वो कंपनी का, है ना, और उधर से उनकी वेजेस पेएबल है तो उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. ऐसे करते हैं. तो पुराना लैपटॉप है कोई लेगा नहीं, एम्प्लॉयज तो ले लेते हैं. एम्प्लॉयज कार है, जैसे मान लीजिए कंपनी के नाम है कार, तो एम्प्लॉय को दे रखी है चलाने के लिए. सर अगर मैं सपोज मतलब मैं एग्जांपल दे रही, मैं कोई कंपनी में हूँ, अगला मेरे को उनका ड्यू मेरे तरफ पैसों में बनता है, ठीक है, लाइक सपोज 1 लाख रुपीज, वो मेरे को बोलता है आप लैपटॉप ले लो. सर हाँ. मेरे पास ऑलरेडी लैपटॉप है, फिर तो मैं हाँ तो नहीं लोगे आप. ठीक है, वो तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से ही होगा ना नेचुरली. ओके अंडरस्टूड सर. हाँ, है ना. और अप्रूवल ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन भी है. ओके विद द अप्रूवल ऑफ द कॉर्पोरेट, तो यहाँ कॉर्पोरेट पर्सन से भी अप्रूवल है ना. ओके. उसके बाद में रिटर्न ऑफ मनीज, और किसी को गलती से वापस मिल गया तो वापस कर देगा. कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन. द लिक्विडेटर शैल एंडेवर टू कंप्लीट द लिक्विडेशन प्रोसेस ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन एंड सबमिट द फाइनल रिपोर्ट. तो कितने दिन में कंप्लीट करनी है, 270 days. ठीक है. 270 days अगर कोई क्रेडिटर है तो. ठीक है. अगर क्रेडिटर नहीं है तो 90 days. ठीक है, 2 पीरियड. In the event of the liquidation process continuing for more than the period stipulated in sub regulation 1, अगर ये 270 या 90 days में कंप्लीट नहीं होता तो क्या होगा,
तो the liquidator shall hold a meeting of the contributories of the corporate person within 15 days from the end of 270 days or 90 days, and thereafter at the end of every succeeding 270 days or 90 days. ठीक है, till submission of application for dissolution. तो मीटिंग बुलाएगा कंट्रीब्यूटरीज को, और वहां पर क्या सबमिट करेगा? एक स्टेटस रिपोर्ट इंडिकेटिंग प्रोग्रेस इन लिक्विडेशन, इंक्लूडिंग settlement of list of stakeholders, details of any assets that remains to be sold and realized, distribution made to the stakeholders, distribution of unsold assets made to the stakeholders, developments in any material litigation by or against the corporate person, filing of and development in applications for PUFE transactions. तो ये सारी चीजें स्टेटस रिपोर्ट में बताएगा. ठीक है. The reasons for not completing the process within the stipulated time period and the additional time required for completing the process. ठीक है. The status report shall enclose the audited accounts of the liquidation showing the receipts and payments pertaining to liquidation since the liquidation commencement date. ठीक है. The liquidator shall file the status report with the board within 7 days of the meeting of the contributors. तो ये वाली रिपोर्ट जो है ये बोर्ड को भी देनी. ठीक है. जो आप पूछ रहे थे ना शर्मा जी, विवेक शर्मा जी, किस किस को कौन कौन सी रिपोर्ट देनी, तो हर रिपोर्ट के साथ लिखा हुआ है कौन कौन सी रिपोर्ट किस किस को देनी. ठीक है. अब फाइनल रिपोर्ट. On completion of the liquidation process, the liquidator shall prepare the final report consisting of, अब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर फाइनल रिपोर्ट बनाएगा. उस फाइनल रिपोर्ट में क्या रहेगा? Audited accounts of the liquidation showing receipts and payments pertaining to the liquidation since the liquidation commencement date. फिर उसके अलावा एक स्टेटमेंट demonstrating that the assets of the corporate person has been disposed of, debt of the corporate person has been discharged to the satisfaction of the creditors, no litigation is pending against the corporate person, or sufficient provision has been made to meet the obligations arising from any pending litigation. मतलब उसके लिए प्रोविजन कर लिया. प्रोविजन क्या कर लिया? मतलब वो ये एफिडेविट देते हैं डायरेक्टर्स की, हम दे देंगे. ठीक है, क्योंकि बैंक अकाउंट वगैरह तो इनको बंद करने हैं, है ना. ए सेल स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एसेट, उसके अलावा एक सेल स्टेटमेंट जाएगी. क्या? रियलाइज्ड वैल्यू कितनी है, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन कितनी है, मैनर एंड मोड ऑफ सेल क्या है, एन एक्सप्लेनेशन फॉर द शॉर्टफॉल इफ द वैल्यू रियलाइज्ड इज लेस देन द वैल्यू असाइंड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यू, क्योंकि इन्होंने पहले वैल्यूएशन करवाया था. ठीक है. अब मान लीजिए अल्टीमेटली वैल्यू रियलाइज हुई कम, तो फिर एक्सप्लेनेशन देंगे. ठीक है. इफ द वैल्यू रियलाइज्ड इज लेस देन द वैल्यू असाइंड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यू. ठीक है. द पर्सन टू हुम द सेल इज मेड एंड एनी अदर रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ द सेल. ठीक है. और ये जो फाइनल रिपोर्ट है ये किस किस को देनी है? रजिस्ट्रार को और बोर्ड को. ठीक है. The liquidator shall submit the final report and the compliance certificate in Form H along with the application under subsection 1 of section 59 to the adjudicating authority. ठीक है. तो फाइनल रिपोर्ट और जो कंप्लायंस सर्टिफिकेट है ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे रहा है. तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का रोल क्या क्या आ गया? एक तो हमने रेगुलेशन 40 में पढ़ लिया है ना, कि भाई अगर फ्रॉडुलेंट पर्पज से वॉलंटरी लिक्विडेशन इनिशिएट कर रहे हो या लिक्विडेटर को लगता है कि ही विल नॉट बी एबल टू पे इट्स डेट्स इन फुल, तो फिर उस केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट कर रहा है. या फिर यहां पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को क्या दे रहा है? फाइनल रिपोर्ट और कंप्लायंस सर्टिफिकेट. ठीक है. इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं वो या तो रजिस्ट्रार को है या बोर्ड को है या कॉर्पोरेट पर्सन. रेगुलेशन 39 कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट. The board shall maintain and operate an account to be called the corporate voluntary liquidation account with a scheduled bank. एक तो हमने क्या पढ़ा था कि XYZ लिमिटेड इन वॉलंटरी लिक्विडेशन, वो तो अलग चीज है, वो वॉलंटरी लिक्विडेटर ऑपरेट कर रहा है. ये कौन सा अकाउंट है? ये बोर्ड ऑपरेट कर, बोर्ड मतलब IBBI. ठीक है. Provided that until the corporate voluntary liquidation account is operated as part of the public accounts of India, the board shall open a separate bank account with a scheduled bank for the purpose of this regulation. अब यहां पर क्या लिक्विडेटर ने क्या डिपॉजिट करना है? जो भी अनक्लेम डिविडेंड्स है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसीड्स है. ठीक है. along with any income earned thereon till the date of deposit before he submits an application under subsection 7 of section 15. मतलब ये जो फाइनल लगा रहा है रिपोर्ट,
तो उसके पहले क्या करना है, इसको ये पैसे यहां पर जमा करना। ठीक। और अगर पुराने वाले कोई पैसे हैं तो वो 15 डेज के अंदर जमा करना। और अगर ये पैसे जमा नहीं कराता तो क्या होगा, 12% इंटरेस्ट। A liquidator shall submit to the authority with which the corporate person is registered and the board. ठीक है, मतलब रजिस्ट्रार और बोर्ड को क्या बताएगा कि भैया मैंने, मेरे पास जो भी बाकी पैसे बचे थे वो मैंने कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट में जमा करा दी, उसकी रसीद लगा दे। एंड स्टेटमेंट इन फॉर्म जी सेटिंग फॉर द नेचर ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट। पर एक फॉर्म जी भरेगा, उसमें क्या लिखेगा, अमाउंट कितना डिपॉजिटेड है और नेम्स और लास्ट नोन एड्रेसेस ऑफ द स्टेक होल्डर्स क्या एंटाइटल्ड टू रिसीव द अनक्लेम्ड डिविडेंड्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसीड्स। ठीक है, द लिक्विडेटर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द बोर्ड फॉर एनी अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट अंडर दिस रेगुलेशन। अब इसने यहां पैसे जमा करा दिए जो भी अनक्लेम्ड अमाउंट था। अब मान लीजिए अभी डिसोल्यूशन नहीं हुआ, अगर डिसोल्यूशन से पहले ही कोई आ जाता है बंदा who claims to be entitled to any amount deposited into the corporate voluntary liquidation account, तो वो क्या करेगा, लिक्विडेटर को अप्लाई करेगा फॉर्म आई के अंदर। ठीक है, फॉर विड्रॉल ऑफ द अमाउंट। जैसे मान लीजिए फादर कोई था, स्टेक होल्डर था, अब फादर की हो गई डेथ, तो उसका बेटा आ गया कि जी मेरे फादर की डेथ हो गई और ये पैसा मुझे दिया जाए, तो वो अप्लाई करेगा लिक्विडेटर को, अगर डिसोल्यूशन नहीं हुआ है तो। ठीक है, और अगर डिसोल्यूशन हो गया तो फिर तो बोर्ड को IBPI अप्लाई करेगा। ठीक है, on receipt of request under sub regulation 7, the liquidator after verification of the claim shall request the board for release of amount to him for onward distribution. ठीक है, the board on receipt of request may release the amount to the liquidator. ठीक है, the liquidator shall make, after making the distribution to the stakeholder, shall intimate the adjudicating authority of such distribution. तो ये adjudicating authority को भी बताएगा, यहां पर भी adjudicating authority का रोल है। सर एक क्वेश्चन आ रहा है इस हाँ, पे, जैसे सपोज यहाँ पे कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन में तो वही फंड रहेगा जो हमारा अनक्लेम्ड है स्टेक होल्डर की तरफ से, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। सपोज वहां पे 100 लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, 100 या 1000, ठीक है। उसने फॉर्म जी में भर के दे दी ना, सबकी डिटेल दे दी। हाँ, सबकी डिटेल दे दी। सर सपोज एक आज आया, एक कल आया, एक परसों आया, तो एवरी टाइम हम लोगों को IBI को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि कोई टाइम होगा कि विद इन दिस मंथ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हर एक बार इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे सपोज आज एक आया, उसको सब पैसे वैसे दिए गए, सल्टाया गया, एक रिपोर्ट दी, फिर अगला कोई आ गया, फिर तो सर ऐसे ये प्रोसेस चलता ही नहीं रहेगा। ऐसा है ना, ये डिसोल्यूशन तक चलेगा, डिसोल्यूशन के बाद ये तो फ्री हो जाएगा, फिर वो बोर्ड के पास जाएंगे। ओके, ये तो डिसोल्यूशन तक ही है ना, ये तो तब है जब इसने एप्लीकेशन लगा दी डिसोल्यूशन के लिए। एप्लीकेशन के साथ, एप्लीकेशन लगाने से पहले इसको ये पैसा यहाँ पर जमा कराना है, एप्लीकेशन के साथ ही ये लगानी है रिसीट डिपॉजिट, भाई मैंने ये पैसा जमा करा दिया। अब इसने अप्लाई कर दिया डिसोल्यूशन के लिए, फॉर्म एच भी भर दिया लिक्विडेटर ने, ठीक है, लेकिन अभी डिसोल्यूशन नहीं हुआ, मान ली महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने, जो भी पीरियड है, तो उस पीरियड के बीच में कोई आ जाएगा तो फिर ये रिक्वेस्ट करेगा किसको, वो बोर्ड को, कि इसको पेमेंट कर देने के लिए। ठीक है, और फिर बोर्ड रिलीज कर देगा, और ये क्या करेगा, ये फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी बता देगा। ठीक है, ओके सर। अब दूसरी सिचुएशन 70, डिसोल्यूशन हो गया, डिसोल्यूशन के बाद में कोई स्टेक होल्डर आया तो वो बोर्ड को अप्लाई करेगा फॉर्म आई में। ठीक है, और मान लीजिए स्टेक होल्डर के अलावा कोई दूसरा पर्सन आता है तो क्या होगा, वो एविडेंस देगा टू सेटिस्फाई द लिक्विडेटर और द बोर्ड एज द केस में भी दैट इज सो एंटाइटल्ड। ठीक है, मान लीजिए स्टेक होल्डर खुद नहीं आता, उसका कोई अदर पर्सन आता है, मान लो भाई कहता है स्टेक होल्डर की डेथ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो फिर वो अपना प्रूफ देगा, ले सक्सेशन सर्टिफिकेट, लीगल एड सर्टिफिकेट, जो भी होगा, है ना। द बोर्ड में इफ सेटिस्फाइड दैट द स्टेक होल्डर और एनी अदर पर्सन रेफर टू अंडर सब रेगुलेशन डी 7D इज एंटाइटल्ड टू विड्रॉल ऑफ एनी अमाउंट, he may make an order for the same in favor of that stakeholder or other person। ठीक है, तो फिर बोर्ड ऑर्डर कर देगा। The board shall maintain a corporate person ledger wise, corporate person wise ledger account रखेगा।
ऑफ द अमाउंट, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारे कॉर्पोरेट पर्सन होंगे ना बोर्ड के पास तो। हाँ जी। हाँ, तो बोर्ड क्या करेगा, कॉर्पोरेट पर्सन वाइज लेजर रहेगा ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड इन टू एट द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट। उसके पास तो एक ही कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट है बोर्ड के पास, और उसमें फिर कॉर्पोरेट पर्सन वाइज उसने लेजर मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है, द बोर्ड शेल नॉमिनेट एन ऑफिसर ऑफ द लेवल, ऐसा नहीं कि हर कंपनी के लिए कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट खोल रहा बोर्ड, नहीं, एक ही कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट है, उसने सब कॉर्पोरेट पर्सन का उसमें लेजर खोल रखा हाँ जी, अंडरस्टूड हाँ सर। सर, द बोर्ड शेल नॉमिनेट एन ऑफिसर ऑफ द इन्वेस्ट लेवल नहीं ऑफ, है बोला ना उसमें। हाँ जी, पूछता हूँ दिक्कत कहाँ है सर, तो इन्वेस्ट। विवेक शर्मा जी म्यूट कर लीजिए अपने को। तो सॉरी सर। कोई बात नहीं। द बोर्ड शेल नॉमिनेट एन ऑफिसर ऑफ द लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड एज द कस्टोडियन ऑफ द कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट एंड नो प्रोसीड शैल बी विड्रॉन विदाउट हिज अप्रूवल। ठीक है, the board shall maintain proper accounts of the corporate voluntary liquidation account and get the same audited annually. The audited report along with the statement of account of the corporate voluntary liquidation account shall be placed before the governing board and shall be forwarded to the central government. Any amount deposited into the corporate voluntary liquidation account in pursuit of this regulation, which remains unclaimed or undistributed for a period of 15 years from the date of dissolution, and any amount of income or interest received or earned shall be transferred to the consolidated fund of India. ठीक है, तो अगर 15 साल तक नहीं होता तो फिर वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाए। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और इंसॉल्वेंसी हमने पहले ही पढ़ लिया। ठीक है, अगर लिक्विडेटर को लगता है कि भैया फ्रॉड प्ले कर रहे हैं या फिर दे विल नॉट बी एबल टू पे द डेट्स इन फुल, तो वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा टू सस्पेंड द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन एंड पास एनी सच ऑर्डर एज इट डिक्रीज। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स हमने पहले ही पढ़ लिया कि ये सारे रिकॉर्ड्स इसको रख दें। ठीक है, कब तक, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स 8 ईयर्स तक और फिजिकल कॉपी 3 ईयर्स तक। ईयर्स तक। और इसके बारे में ये डिक्लेरेशन में भी दे देगा, डिक्लेरेशन में दे देगा कि दे हैव मेड प्रोविजन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो जब वॉलंटरी लिक्विडेशन इनिशिएट करते हैं उस टाइम भी दे देते हैं। हाँ जी बोलिए। सर एक क्वेश्चन था यहाँ पे, अपना बात हुआ था ना कि जो अपना कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट रहेगा उसका एनुअली ऑडिट होगा, मींस 15 ईयर्स तक अपना ऑडिट चलेगा। इन हाँ केस टाइम 15 ईयर्स है, तो सर हाँ, इसका तो ऑडिट का एक खर्चा होगा, तो वो खर्चा हम इसी अकाउंट से डेबिट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो तो बोर्ड का अकाउंट है ना, उसका लिक्विडेटर से कोई मतलब नहीं है। वो तो बोर्ड के पास जितने भी कंपनी वॉलंटरी लिक्विडेशन में है हाँ उन जी। सबका उन्होंने कॉर्पोरेट पर्सन वाइज लेजर खोल रखा है, तो बोर्ड उसका ऑडिट करवाएगा अपने आप, बोर्ड खर्चा बियर करेगा। अच्छा, बोर्ड बियर करेगा, हाँ, इसमें इसकी फिर कंपनी से अपना कोई मतलब लिक्विड। नहीं, ना ना ना। अंडरस्टूड, बाय द हाँ बोर्ड। ओके, यहाँ लिख हाँ, लेती हूँ ऑडिटेड। बोर्ड, हाँ हाँ हाँ, यहाँ लिखा हुआ है। हाँ जी, हम्म, ये हो गया रिजर्वेशन और फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स। द लिक्विडेटर शैल फाइल द फॉर्म्स along with the enclosures on an electronic platform of the board as per the timelines stipulated against each form। ठीक है, तो ये टेबल है, ये 4 फॉर्म्स है, VL1, VL2, VL3, VL4। तो VL1 क्या है, दिस इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन, डिटेल्स ऑफ द वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस। ठीक है, VL1 के अंदर ये चीज आती है। और ये कब सबमिट करना है, ऑन और बिफोर द 10th डे ऑफ द सेकेंड मंथ आफ्टर द पब्लिक अनाउंसमेंट। VL2 क्या है, VL2 में जाएगा डिटेल्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ कंट्रीज with the reasons for delay in the process, details of replacement of liquidator if any। ठीक है, ये भी कब होगा, ऑन और बिफोर द 10th डे ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ आफ्टर द मीटिंग ऑफ द कंट्रीब्यूटरीज और रिप्लेसमेंट ऑफ द लिक्विड। VL3 क्या है, डिटेल्स ऑफ डिसोल्यूशन एप्लीकेशन, डिटेल्स ऑफ अनक्लेम्ड प्रोसीड्स, डिटेल्स ऑफ रियलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू स्टेक होल्डर्स, डिटेल्स ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और इंसॉल्वेंसी। तो ये VL3 में सबमिट करना है ऑन और बिफोर 10th डे ऑफ द subsequent month after submission of the dissolution application or withdrawal or suspension application for the voluntary liquidation process। ठीक है, और VL4 क्या है, डिटेल्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन, दिस इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स, receipts and payments etc।
तो ये सबमिट करना ऑन और बिफोर 14th डे ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन और विड्रॉल सस्पेंशन ऑफ द वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस। ठीक है, ये 4 इसके फॉर्म्स हैं। और एक कहां पर सबमिट करने हैं? ऑन द इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ऑफ द बोर्ड। ठीक है, ये VL3 आपको देना है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। VL3 देना है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। हाँ, अच्छा, बाकी सारे फॉर्म ही आपको बोर्ड की वेबसाइट पर ही अपलोड करने हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ऑफ द बोर्ड। लेकिन VL3 की कॉपी आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, क्योंकि VL3 में क्या है? डिसोल्यूशन एप्लीकेशन है ना। इलेक्ट्रॉनिक द लिक्विडेटर शैल एंश्योर that the forms and its enclosures filed under this regulation are accurate and complete. The filing of a form under this regulation after the due date of submission, whether by correction, updation or otherwise, फॉर्म में कोई गलती है, कोई अपडेशन है, तो उसके साथ फीस लगेगी 500 रुपीज पर फॉर्म फॉर ईच कैलेंडर मंथ ऑफ डिले। ठीक है, आफ्टर द डेट नोटिफाइड बाय द बोर्ड। और लिक्विडेटर के ऊपर एक्शन भी हो सकता है, इंक्लूडिंग रिफ्यूजल टू इशू और रिन्यू ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट। ठीक है, फॉर फेलियर टू फाइल ए फॉर्म अलॉन्ग विद रिक्विजिट इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स, इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और डिले इन फाइलिंग द फॉर्म। ठीक है, तो ये सारे हमारे फॉर्म्स हैं। वो VL1 2 3 4 तो अलग है, उसके अलावा जो फॉर्म जैसे पब्लिक अनाउंसमेंट का फॉर्म ये है। ठीक है, अब इसमें एक खास बात देखो, ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि यहां पर ये क्या कर रहा है? पब्लिक अनाउंसमेंट के अंदर यहां आप देखो कि यहां पर डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द प्रोसेस नहीं है। ठीक है, जैसे CIRP में क्या होता है कि आपका प्रोसेस 180 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, वो सब चीजें लिखी रहती हैं। यहां पर ऐसी बात नहीं लिखी है ना। तो लिक्विडेशन, ये वॉलंटरी लिक्विडेशन कब क्लोज होगा ये नहीं लिखा इसमें। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने इलेक्ट्रॉनिक मीन से सबमिट करने हैं क्लेम्स, और जो अदर स्टेक होल्डर्स दे में सबमिट द प्रूफ ऑफ क्लेम इन पर्सन, बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ठीक है, फॉर्म बी है प्रूफ ऑफ क्लेम बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर्स एक्सेप्ट वर्कमैन एंड एम्प्लॉइज। फॉर्म सी प्रूफ ऑफ क्लेम बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। फॉर्म डी वर्कमैन और एम्प्लॉय। और फॉर्म ई न्यूमरस वर्कमैन और एम्प्लॉय। फॉर्म एफ अदर स्टेक होल्डर्स। फिर फॉर्म जी है डिपॉजिट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड्स एंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसीड्स। और फॉर्म एच है आपका कंप्लायंस सर्टिफिकेट। सर, अपने को क्या ये खाली एक बार रीडिंग करके छोड़ देना है कि इसको हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ कि बस नॉलेज के लिए हमें पता होना हाँ, बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। पर और सर, फॉर्म आई है इंटरेस्टिंग। विड्रॉल फ्रॉम कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन। कॉर्पोरेट। फिर शेड्यूल 2 है। शेड्यूल 2 में क्या है? ये फिर आपने जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसका फॉर्मेट दिया हुआ, कैश बुक, जनरल लेजर, बैंक लेजर। बस एक नजर देख लीजिएगा, और कोई खास बात इसमें नहीं। ठीक है इतना सा सर। ही था वॉलंटरी लिक्विडेशन। तो बिफोर वी मूव टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, आपका कोई क्वेश्चन हो इस पर तो पूछ सकते हैं, वॉलंटरी लिक्विडेशन से रिलेटेड। सर, लेकिन पढ़ने में मजा आ रहा है, प्रैक्टिकल करने में और अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, आज मतलब एक फ्लो बना है, मेरे को समझ में आ रहा है कौन सी चीज बुक में कहाँ पे है, कहाँ रूल्स है, कहाँ रेगुलेशन है, कौन सा फॉर्म है। है आज ये 2025 वाले वेरिएंट है ना आपकी स्क्रीन के साथ साथ, आई एबल हाँ टू कहाँ पे रेगुलेशन है, कहाँ पे क्या शेड्यूल टू, कहाँ कहानी चल रही है सारा। तो फॉर द फर्स्ट डे आई एम एबल टू करेक्ट ऑल द थिंग्स जो आप स्क्रीन पे पढ़ा रहे हैं अपने सॉफ्ट कॉपी से, क्लियर हाँ, एक्सेस कर पा रहा हूँ आज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही। अदरवाइज देखो, बाद वाला 26 का ले लो तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना। नहीं नहीं सर, वो नहीं मजा आता। हाँ वही, सही बात है। ये भी मैंने शेयर की थी आपसे, है ना। ये भी प्रेजेंटेशन शेयर की है ना। मतलब
देखना पड़ेगा सर से। हम्म। ये जस्ट इसमें जिस्ट दे रखा है। ये आपका वॉलंटरी लिक्विडेशन। ठीक है। तो कौन कौन वॉलंटरी लिक्विडेशन शुरू कर सकता है? कंपनी हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, या अदर बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, अगर अदर बॉडी कॉर्पोरेट ने वॉलंटरी लिक्विडेशन इनिशिएट करना है तो डिक्लेरेशन कौन देगा वहां पर, ये बताइए। अगर कोई अदर बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, वो अपना वॉलंटरी लिक्विडेशन शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें डिक्लेरेशन कौन साइन करेगा? जो उस बॉडी कॉर्पोरेट का जो गवर्निंग एक्ट है उसमें जो, हाँ, गवर्निंग बॉडी, जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं। जो ऐसे कॉर्पोरेट बॉडी होती है ना, मान लो डीडी है या कोई भी अदर हाँ हाँ, कॉर्पोरेट बॉडी है, यस। तो उसमें जो गवर्निंग बोर्ड होता है ना, जो गवर्निंग बोर्ड के मेंबर है वो साइन करे। ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन मेजोरिटी से होगा या स्पेशल मेजोरिटी से होगा? सर मेजोरिटी वर्ड लिखा है नॉर्मल, तो 50% मेजोरिटी से से, होगा। मेजोरिटी से। और अगर एलएलपी है तो मेजोरिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स या मेजोरिटी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स राइट सर। है? हाँ सर, ऑल पार्टनर्स होना चाहिए मतलब, जनरल पार्टनर सर। नहीं, आप पढ़ो रेगुलेशन में क्या लिखा। सर सर रेगुलेशन, मैं रेगुलेशन देखना, 3 रेगुलेशन, रेगुलेशन नंबर 3 है भैया। नंबर 3। लिखा है हम्म। डेजिग्नेटेड पार्टनर सर, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है सर। हाँ, ठीक है। तो यहाँ डेजिग्नेटेड पार्टनर हो जाएगा, डेजिग्नेटेड। और फिर स्पेशल रेजोल्यूशन होगा बाय मेंबर्स, या रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स फॉर एलएलपी 3/4 पार्टनर्स विद इन 4 वीक्स ऑफ द डायरेक्टर्स रिक्लेक्शन। ठीक। उसके बाद में अगर मान लीजिए ऐसे कुछ आर्टिकल्स में ये लिखा है कि भैया ये 3 साल बाद डिसॉल्व हो जाएगी, तो उस केस में क्या करना है आपको? उस केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो जाएगा इंस्टेड ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। अब इसमें वो कई बार क्या पूछ लेता है, वो ऐसा पूछता है बहुत बार कि मान लीजिए कंपनी में 3 ही डायरेक्टर हैं और 3 ही शेयर होल्डर हैं। ठीक है। अब दो जो डायरेक्टर हैं वो एक तरफ चलते हैं और तीसरा डायरेक्टर उनके अगेंस्ट चलता है हमेशा। तो ऐसे केस में क्या वॉलेंटरी लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगा? तीनों की शेयर होल्डिंग इक्वल है। मेरा केस समझ गया आप? एक यस सर। कंपनी में 3 ही डायरेक्टर है और 3 ही शेयर होल्डर है। दो डायरेक्टर और तीनों की शेयर होल्डिंग इक्वल है। दो डायरेक्टर एक तरफ चलते हैं और तीसरा हमेशा उनसे उल्टा चलता है। तो क्या ऐसी कंपनी में वॉलंटरी लिक्विडेशन हो सकता है? यस और नो, ये क्वेश्चन है। यस सर, हो सकता है। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 75% कहां से लाएंगे फिर? तीनों का एक यस शेयर इक्वल है ना, 30-33। ओके ओके सर, सर मेरे माइंड डिक्लेरेशन, में 66 था, सॉरी सर, और 75 है यस सर। हाँ, डिक्लेरेशन तो हो जाएगा लेकिन स्पेशल हम्म, रेजोल्यूशन पास नहीं कर पाएंगे ना। यस सर। तो जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ तो हो नहीं पाएगा वॉलंटरी लिक्विडेशन। यस। है ना? ठीक है सर, समझ। जो वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट कौन सी डेट होती है इस केस में? सर और क्या इस स्टेज पर कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी?
पहले तो ये बता दीजिए वॉलंटरी कमेंसमेंट डेट होगी कौन सी डेट होगी? डेट ऑफ पासिंग द रिजोल्यूशन। हाँ, डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स और शेयरहोल्डर्स। ठीक है। हाँ जी। डायरेक्टर की डिक्लेरेशन वाली डेट नहीं लेनी है, पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं लेनी है, डेट ऑफ लिक्विडेटर अपॉइंटमेंट भी नहीं लेनी। ठीक है। क्या बोर्ड की पावर सस्पेंड होती है इसमें वॉलंटरी लिक्विडेशन में? नो सर। नहीं। क्यों? क्योंकि सेक्शन 34 एप्लीकेबल नहीं है। यस सर। सेक्शन 34 में लिखा है लिक्विडेशन, अगर हम देखें तो लिक्विडेशन में लिखा है कि भाई बोर्ड की पावर सस्पेंड होगी, लेकिन यहां पर क्या लिखा? 35 से 53 तक एप्लीकेबल हाँ जी। है ना? तो 33 और 34 एप्लीकेबल है। 33 क्या है? 33 में एक है भाई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी लिक्विडेशन का। यहाँ पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कोई ऑर्डर पास नहीं करती, है ना? यहाँ डीमिंग फिक्शन है कि यस भाई सर। जो डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन है वही वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट है ना? और 34 में क्या लिखा? 34 में वहां पर लिखा है कि बोर्ड की पावर खत्म हो जाती है। यहाँ सस्पेंड पर हो ऐसा जाएगी। नहीं है, इट इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। और कंप्लीशन पीरियड कितना है वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए? सर 270 इन केस ऑफ डेट क्रेडिटर हाँ और 90 डेज इन केस ऑफ डेट फ्री। बिल्कुल। और अगर मान लीजिए तब तक कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या करेंगे? सर एक्सटेंशन के लिए जा सकते हैं। हाँ, मीटिंग ऑफ कंट्रीब्यूटर्स बुलाएंगे। हाँ जी। लिक्विडेटर कौन अपॉइंट करता है इसमें वॉलंटरी लिक्विडेशन में? सर ये बोर्ड का जो कंपनी कॉर्पोरेट पर्सन हाँ, जो। जो कॉर्पोरेट पर्सन है वो वही रेजोल्यूशन पास करेंगे, है ना? हाँ जी। हम्म। तो ठीक है, आज आपका कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो वॉलंटरी लिक्विडेशन तो यहीं पर खत्म हो जाता है। ये देखिए, ये वाला चार्ट था, ये जो मैं बता रहा था, ये किस किस को बताना है? रजिस्ट्रार, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और बोर्ड। बोर्ड। ठीक है ना? तो रेजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन आपको रजिस्ट्रार को और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बताना है। रेजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन। सर बोर्ड मींस आईवीबीआई। हाँ ओके। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी गलत लिख दिया, यहाँ बोर्ड होना चाहिए। हाँ वही सर। ये यहाँ गलत लिखा है, यहाँ नहीं होगा, ये बोर्ड को बताएगा। यहाँ है, इसने गलत बना दिया। हाँ, और ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बताएगा। यहाँ पे यस आएगा सर सेकंड लिक्विडेटर वाले। फेल्स लिक्विडेशन, ये इसको बताना यहाँ है। नहीं आके ए में आएगा। हाँ, ए में आएगा। हाँ, अब ठीक है। ये भी यहाँ पर रजिस्ट्रार को नहीं बता के ए को बताएगा। हाँ ये भी यहाँ पे आएगा। और डिस्क्लोजर ऑफ पेक्यूनरी इंटरेस्ट बाय द लिक्विडेटर, ये तो रजिस्ट्रार और बोर्ड को बताना है इसको। हाँ जी। ये एजुडिकेटिंग है। ये यहाँ पर आएगा। फाइनल रिपोर्ट ऑफ लिक्विडेशन ये तीनों को देनी है, रजिस्ट्रार को हाँ भी, जी। बोर्ड को भी और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, है ना? हाँ जी। और क्रेडिटर फाइलिंग एन अपील अगेंस्ट द लिक्विडेटर्स डिसीजन, तो ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। तो अपील आपको किसको फाइल करनी है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इसने गलत प्लस बना दिया सारा। अब ठीक है। सर रिवीजन हो गया हमारा हाँ कि हम ठीक पढ़े हैं। हाँ, ये कुछ पेनल्टीज है। ये तो जब के स्टडीज करेंगे तब कर लेंगे हम। ट्रिगर पॉइंट क्या होता है भाई? लिक्विडेशन में तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की का ऑर्डर होता है ना? लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कॉर्पोरेट पर्सन का ओन डिसीजन है क्योंकि सॉल्वेंट है ना? और कौन इनिशिएट करता है इसमें? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पासेस एन ऑर्डर एंड हियर कॉर्पोरेट पर्सन फाइल्स डिक्लेरेशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन।
लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट यहाँ ए अपॉइंट करता है और वॉलंटरी लिक्विडेशन में कॉर्पोरेट पर्सन अपॉइंट करता है। बोर्ड की पावर लिक्विडेशन में सस्पेंड हो जाती है पर सेक्शन 34 और यहाँ पर सस्पेंड नहीं होती। ठीक है। मॉरिटोरियम इट ऑटोमेटिकली अप्लाइज और यहाँ पर कोई ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होता वॉलंटरी लिक्विडेशन। कमेंसमेंट डेट ऑफ लिक्विडेशन ऑर्डर है और वहाँ डेट ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन है। स्टेक होल्डर्स कमेटी यहाँ मैंडेटरी है, वहां पर इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट यहाँ 75 डेज में देनी है और वहां विद इन 45 डेज टू दी कॉर्पोरेट पर्सन। प्रोग्रेस रिपोर्ट यहाँ क्वार्टरली है, वहाँ एनुअल स्टेटस रिपोर्ट है और बल्कि एनुअल भी हटा दिया वर्ड, यहाँ पर अब खाली स्टेटस रिपोर्ट लिख दिया। पहले एनुअल होता था, अभी एनुअल रिपोर्ट एनुअल भी हटा दिया इन्होंने, तो वर्ड एनुअल नहीं है, सिर्फ स्टेटस रिपोर्ट। ठीक है। पब्लिक अनाउंसमेंट इमीडिएटली करनी है और यहाँ पर विद इन 5 डेज। वैसे इमीडिएटली भी यहाँ पर मतलब 5 डेज ही है। तो 3 डेज था ना, है 3 डेज था ना पब्लिक अनाउंसमेंट का, तो 3 डेज तो CIRP में है ना, लिक्विडेशन में तो 5 डेज ही है। ओके ओनली नॉर्मली है ना, हाँ जी मेरे हिसाब से तो 5 डेज ही है, चेक कर लेना। ठीक है सर। कंप्लीशन पीरियड यहाँ 12 मंथ्स का है या 90 डेज या 270 डेज का। और फाइनल डिपॉजिट आपको यहाँ कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट में करना है या कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन। ठीक है जी, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन फिर भी थोड़ा इस तरह से जल्दी याद हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ COC, ये लिक्विडेशन प्रोसेस के लिए सारा टाइमलाइंस। सेक्शन 53 तो सबको मालूम ही है, इसमें खास बात नहीं। ठीक है जी, तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। MBS कुमार जी, हाउ आर यू? Yeah, I'm fine, fine. तो वर यू एबल टू डाउनलोड दोज क्विज वगैरह, जो क्विज वगैरह मैंने दिए थे आपको? Yes, yes.